So last time we did divergence curl or gradient. Okay, and I said that it was part of an exercise. आप इसकी different identities हैं which are in the book. Since you are following that book, इसको आप करो. Okay, have you attempted them? For example, इसमें divergence of gradient, gradient of divergence, divergence of curl. ठीक है? These are different things. जैसे we defined only three things. We defined हमने ये डिफाइन किया, हमने डिफाइन किया how we define a gradient of a function, how we define a divergence of a function, how we define a curl of a given function. ठीक है? Basically we define a quantity del, which was basically how the components of space derivatives, जैसे कोई भी quantity in space, उसका d by dx d by dy and they are acting on some function, this gradient. So basically it's how the space derivatives के components, how they act on a given quantity as a scalar function, as a vector function. ठीक है? तो अगर scalar dot product होता है तो उसको हम divergence define करते हैं, इसको हम define करते हैं. If it's via cross product or via vector quantity or via scalar quantity, this quantity. उसी का जब हम ऐड करते हैं, for example at a given point electric field की क्या वैल्यू आएगी along x, along y, along components of derivatives कैसे चेंज होते हैं. So we represented that quantity by this gradient, and by that gradient we define quantities of divergence, curl, है ना? That's it. For example, इसमें different identities हैं. Find the. It's not only you stop at here. For example, come. How you can define divergence, curl or divergence. So these are different sort of identities which you can define as such. For example, divergence of gradient. कैसे डिफाइन करोगे? डाइवर्जेंस हो गया ये, देन ग्रेडियंट हो गया दिस वन. ठीक है? इसी तरह आप कर्ल ऑफ ग्रेडियंट क्या आएगा? ये कर्ल हो गया. सो इसमें एक फंक्शन which is very much interesting, one function which comes out to be interesting in this is basically which we might use later is, उसको हम कहते हैं Laplacian of a function. This is also one of the possibilities. Gradient, this of gradient. क्या आएगा? इसको if you expand it, if you just expand one of it, क्या आएगा? अपना आएगा dt by dx plus dt by dy plus dt by dz. इसको आप एक्सपेंड करो तो फिर भी इसको 9 टर्म्स आएंगे. 6 टर्म्स they will not contribute because x dot y will be 0. Only x dot x, y dot y, z dot z. So cos 0 is equal to 1. So it will be basically इसको हम कहते हैं d to x by. इस क्वांटिटी को हम कहते हैं Laplacian. क्या कहते हैं? Laplacian of a given equation. फिलहाल आप still you only इसको याद है, इसको Laplacian कहते हैं. But how Laplacian comes? It comes when we tinker it थोड़ा बहुत gradient, divergence का dot product, cross product. So one of the identities comes Laplacian of a given function. So which is very much useful later. जब हम Laplace equation के solutions भी निकालते हैं, तो it's basically how potential को लेते हैं ऐसे del square v is equal to 0 of इलेक्ट्रोडायनेमिक्स. तो पोटेंशियल किसी भी इक्वेशन की अगर ये सॉल्यूशन होगी, हाउ वी कैन फाइंड पोटेंशियल एट ए गिवन पॉइंट.
So अगर हमने potential find किया, we can find electric field. So apart from the normal procedures of finding electric field by Coulomb's law and superposition principle, by Gauss's law, by choice of potentials, यहाँ से हम electric field को निकाल सकते हैं. A solution of this differential equation. So यहाँ आपने सिर्फ देखा इसको कैसे, how we can get it by simple rules of divergence, gradient, curl, उनका one of the identities. So rest of them आप इसको you just go there and you check out and थोड़ा सा पेंसिल करो यूज एंड you try to see lot of इसकी जो exercises है ना, you try to attend. So it's easy. For example इसमें ये कह रहा है, for example if one of the problems he says prove that divergence of curl is always zero. Prove that problem 27 book कह रही है prove that divergence of curl is always zero. ये तो पता है, चलो divergence is something, a function is divergent. curl हो गया एक rotational quantity, so it will not contribute. कोई फंक्शन ऐसे होगा बट एक कंपोनेंट उसको वापस आएगा. सम these divergence का इफेक्ट और कर्ल का इफेक्ट सम होगा फिजिकली दे विल कैंसिल. पर आप मैथमेटिकली इसको कैसे, हाउ यू ट्राई टू अटेम्प्ट इट. फॉर एग्जांपल you can check it for problem 15. Problem 15 is problem 15 है, हाँ problem 15 है. For example VA is equal to x square x plus 3x z square y minus 2x z. तो कैसे करोगे जरा बताओ, क्या करोगे. डाइवर्जेंस ऑफ अ कर्ल क्या करोगे शाबाश, व्हाट वी डाइवर्जेंस ऑफ कर्व होगा ये डाइवर्जेंस, दिस इज कर्ल है कि नहीं. तो आप पहले अगर आप कर्ल निकालो, कर्ल कैसे हम डिफाइन करते हैं, कल हमने किया था इट्स एक्स वाई जेड है ना, डी बाई डी एक्स डी बाई डी वाई डी बाई, ठीक हो. तो यहाँ आएगा ये x कंपोनेंट है ना, इट विल कम आउट टू हियर. y कंपोनेंट में आएगा ये, z कंपोनेंट में आएगा 2x z. ठीक है. नाउ उसको आप जरा इसका निकालो. पहला वाला क्या आएगा, इट विल कम आउट टू बी, ये 0 आएगा. इट विल कम आउट टू बी 6xz. दूसरा क्या है, y कंपोनेंट, ये आएगा माइनस 2z, ये आएगा ना माइनस dx माइनस 2z. ये और ये क्या आएगा, ये भी 0 आएगा है ना, dz ऑफ x का 0. तो थर्ड वाला जो आएगा will come out to be d by dx of, it will be 3z square. ये भी 0 आ गया दूसरे कंपोनेंट. तो ये हमने निकाला इसका कर्ल, दिस इज कर्ल. अब डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल क्या आएगा, डाइवर्जेंस है ये वाला, डाइवर्जेंस है d by dx of x plus d by dy of y plus d by dz of this function 6xz minus plus हो गया 2zy plus 3z square z. क्या है d by dx का आएगा ये आएगा, it will be 6z. d by dy का आएगा, यहाँ 2z है, it will be 0. वो d by dz का आएगा, हाँ 6z. ठीक है. अब ये यहाँ माइनस आना चाहिए, साइनोइडल कहीं पर हमने गलती की है. ठीक है. अदरवाइज वी हैव कम आउट माइनस का फैक्टर कहाँ पर मिस हो रहा है, माइनस का फैक्टर आना चाहिए. हाँ ये माइनस है, ये माइनस है मिस्टेक. सो
6z minus 6z is equal to 0. So it's a general thing. Divergence में curl is a divergence ऐसे होता है. Curl is a rotational effect. So the two effects somehow would cancel. ये तो physically you can intuit it. अब mathematically अगर आपको कोई भी इसने बुक की ही exercise दी है, prove that divergence of a curl for this function is 0. पहले हम इसका curl निकाला mathematically. बट इसमें आपको कंपोनेंट्स का ख्याल रखना है. ये x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट है. So x you can only differentiate x with x components. Other components के साथ अगर y होता है, that's why we do not take those components which were वो उनका x का z के साथ differentiation नहीं होगा. We have to take component of the derivative in that direction. Field का component उसी direction में. ठीक है. Other components will not contribute. ठीक है. So we have proved it in a simple identity. ठीक है. अब जो आज का हमारा क्लास था, this was the background of last class. So we are basically इसको क्या कहते हैं, जो डिटेल्स ऑफ वेक्टर कैलकुलस है ना, उसको हम अनकवर कर रहे हैं. बेसिकली वी हैव टू स्टडी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ई फील्ड्स, बी फील्ड्स. बट हमने वेक्टर कैलकुलस की लैंग्वेज से हाउ वी कैन फॉर्मुलेट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज फील्ड्स वाई द लैंग्वेज ऑफ वेक्टर कैलकुलस. ठीक है. तो इससे आप देखेंगे इसकी क्या एडवांटेजेस हैं, बहुत सारी एडवांटेजेस हैं. ठीक है. So you are learning a language, and language learn करने से you are going to do the same thing. You're doing the same thing with this language. इससे फायदा क्या आएगा आपको? तो इनिशियली हमने डाइवर्जेंस डिफाइन किया, कर्ल डिफाइन किया, ग्रेडियंट डिफाइन किया. ठीक है. That's it. अब हम the other thing we are going to do today is how we can define line integrals, surface integrals, and volume. You might have studied integral calculus. आपने पढ़ा होगा इंटीग्रल कैलकुलस में, बट यू हैव टू स्टडी देम थोड़ा सा किस कंटेक्स्ट में. लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल. So you have to study these line, surface and volume integrals within the context of electrodynamics. क्योंकि electrodynamics में नॉर्मली आप देखते हैं फ्लक्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हम फ्लक्स ही कहते हैं. किसी भी सरफेस से कितने लाइंस ऑफ फोर्सेस पास होते हैं. ठीक है. तो वी टेक इट सरफेस एरिया, डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया. किसी भी सरफेस एरिया है ना, Q by 4 pi r स्क्वायर अगर आएगा, अगर रेडियल होगा, या अगर वॉल्यूम में होगा कोई चार्ज, तो इट विल बी इन ए गिवन वॉल्यूम. अगर लाइन में होगा, ठीक है, लाइन चार्ज पढ़ते हैं आप, पॉइंट चार्ज पढ़ते हैं आप ये स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज पढ़ते हैं. सो यू हैव पॉइंट, लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम. अब इन तीनों केसेस में हाउ कैन बेसिकली कैलकुलेट द नेट कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड. सो क्योंकि ये स्पेस में ही है ना, जैसे चार्ज को हम पॉइंट चार्ज को स्पेस में ही रखते हैं. अलोंग ए लाइन कितना उसका फील्ड, अगर यहाँ पर चार्ज पॉइंट चार्ज है, यहाँ पर आप फोर्स निकालना चाहते हैं, या दो चार्ज है point charge, they are not in space. ये point charge, point is having no length, so you want to see इनका force क्या है at this point. आपने बहुत सारी problems की होंगी 12th. अब ये जरूरी नहीं लाइन चार्ज होगा, सरफेस पे कोई चार्ज होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सरफेस होगा, या ए चार्ज में भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर होगा, ऑन ए वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा. तो बट दैट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज इन, तो यू हैव टू सी कि इसका नेट वॉल्यूम क्या आएगा. तो नेट फ्लक्स विच इज मे बी उस वहाँ से कितना फ्लक्स निकलेगा. अगर क्यूब में हम चार्ज रखेंगे तो चार्ज फ्लक्स विल गो थ्रू ऑल द 6 फेसेस ऑफ द क्यूब. सो यू हैव टू कैलकुलेट एक एक फेज से कितना आपका फ्लक्स आ रहा है, एंड देन वी इंटीग्रेट द रिजल्ट, उसको ऐड करते हैं. सो इन द सेम वे इंटीग्रल मींस क्या, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. देयर इज एक फंक्शन, यू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. डेरिवेटिव दिया है कहीं पर, तो प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेशन इज टू गेट टू द फंक्शन बैक. नेट क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन क्या आएगा, सबका ऐड करके. ठीक है. फर्स्ट वी विल डिफरेंशिएट, मतलब फ्लक्स, नेट फ्लक्स कितना चेंज हुआ था, स्पेस डेरिवेटिव, फिर उन सब का कंट्रीब्यूशन करके उसी का फिर हम इंटीग्रल निकालते हैं. द इंटीग्रल में बी अलोंग लाइन, इट मे बी अलोंग सरफेस, इट मे बी अलोंग ए वॉल्यूम. सो इफ वी स्टडी फॉर एग्जांपल फर्स्ट, पहला वाला हम करेंगे
first one is line integral. Line integral. तो लाइन इंटीग्रल का एक्सप्रेशन ऐसे है, द क्वांटिटी इसका वैल्यू फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी डॉट डीएल, वेयर बी जो है बी इज ए वेक्टर फंक्शन, ठीक है, बी इज ए वेक्टर फंक्शन एंड डी एल और डी आई जो है ये हम इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जिस तरह आप करते हैं अर्लियर क्लास वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डीएस करते हैं ना, कितना काम हुआ। अब यहाँ पर भी एफ डॉट डीएस विल जस्ट टेक इट एज ए फंक्शन वेक्टर फंक्शन। दैट वेक्टर फंक्शन कैन लेटर भी कोई भी ई फील्ड जो भी है, कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी लेटर ले सकते हैं। तो विल डिफाइन इट इन ए जनरल सेंस, then we can apply it for a magnetic B field, the E field we apply करेंगे। So लाइन इंटीग्रल को हम कैसे इवेल्युएट करते हैं? अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट, जैसे आप अर्लियर क्लास का फैक्ट ऐसे पढ़ते हैं ना, F dot DL from distance A to how to calculate work done from point A to। अब इसमें ये है कि you have been ऐसे भी पढ़ा होगा आपने, F dot DL is equal to क्या है? It's a closed integral. It's zero. For example, if you start from A to B points, तो आप ऐसे करेंगे ना A to B F dot dl. So it's basically all F dot dx. So if it's work done from point A to, तो point ऐसे B minus A करते हैं ना, if you just इसको इंटीग्रल को आप ऐसे करोगे F dx, L का फिर वैल्यू करोगे B और A में काम। मगर अगर ये बिटवीन द सेम पॉइंट से इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट एंड इट अराइज एट ए, तो इट विल कम आउट टू बी b माइनस, अगर ये a पॉइंट है b इट विल कम वापस उसी पॉइंट में, तो इट विल बी वर्क डन अराउंड ए क्लोज्ड पाथ, व्हेन यू स्टार्टेड यू कम अराइव एट द सेम पाथ, वी से इट्स जीरो। उसी को हम डिफाइन करते हैं कंजर्वेटिव फील्ड में। क्या करते हैं डिफाइन? Work done depends upon only on the initial and the final path taken. तो अगर इन मैथमेटिकल लैंग्वेज में उसका इंटीग्रल फ्रॉम इनिशियल एंड फाइनल को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनिशियल पाथ टू। अगर इट डजंट डिपेंड अपॉन द इंटरमीडिएट पाथ्स, तो उसी फील्ड को हम कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। देयर आर फील्ड्स व्हिच आर नॉन कंजर्वेटिव, इसका मतलब है नॉन, वहाँ इट विल डिपेंड कि अगर आप इफ आई गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, अगर मैं यहाँ से गया और अगर मैं यहाँ से गया ना, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड समथिंग मोर और लेस, इट विल नॉट बी द सेम एज वी हैव कम फ्रॉम ए टू बी। फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिक फील्ड में है ना आपको B डॉट DL, इफ यू रिमेंबर इट्स नॉट जीरो, इट्स म्यू नॉट I. We define it as a non conservative field, so it depends upon the path chosen. Up we are not interested in currently, we are going to take any function, ठीक है, and we are going to evaluate it दो points using our knowledge of vector calculus, ठीक है। For example, I'll take the example of a book में आपने इसने example दी है which will clear our point, हमको conservative field भी समझ आएगा नॉन तो इस एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल ये कह रहा है कैलकुलेट लाइन इंटीग्रल ऑफ फंक्शन v is equal to y square x plus 2x y plus 1, तो कोई भी फंक्शन है ऐसे, ठीक है, ऐसे नहीं और उनके की देखो हम एक पाथ लेंगे, दो पाथ्स लेंगे, एक पाथ लेंगे इट गोज फ्रॉम ए टू बी, सीधे कैलकुलेट करेंगे, पाथ 1 इसको कहेंगे, ठीक है, या इसको पाथ 2 कहेंगे। दूसरा पाथ कहेंगे हम पहले यहाँ से यहाँ तक जाता है, फिर यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है, इसको हम कहेंगे पाथ 1, इसको कहेंगे पाथ 2, और एट द एंड दे आर रीचिंग द सेम पॉइंट। अब ये यहाँ से मैं काम को ऐसे पकड़ूं या
ऐसी प्रॉब्लम, और ये यहाँ पहुँचता है, ये भी यहाँ पहुँचता है. बट the point is that you have to calculate the line integral from point A to B and point A to B via path 2. तो you have to calculate यहाँ से यहाँ तक कितना contribution आया, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना contribution आया. ठीक है. So if it comes out to be same, then it's a conservative field indirectly. If it doesn't come out to be same, so we'll see general value of integral क्या आएगा, line integral. It may come out to be normally different. But in case of अगर electric field जैसी कोई quantity होगी, तो if you calculate it, it might not, it might be same. It's a conservative field. So we are calculating in general sense how we can calculate line integral between point A to point B via two different paths. The function, vector function being this, ये हमारे पास. इसका z component, अगर z component भी होगा तो space में उसका होगा. इसका है कि along x, along y. So that's it. And the coordinates here are given. Coordinates हैं मतलब x से कितना दूर है. ये 1 है, ये 2 है, हाँ ये 1 है. तो इसको जनरल यहाँ से ये 2 यूनिट्स, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से you can take it as 0 जो भी है. So क्या पहले हम क्या करेंगे? So इससे दो from the point, if point A है 1 1 0 और point B है 2 2 0. Point A है ये इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर है 1 1 0. Point B के कोऑर्डिनेट है 2 2 0. ठीक है. 2 2 0 मतलब x and y is from origin, ये x 2 है, y 2 है. ठीक है. तो पहला पाथ हम लेंगे, सो पाथ पहला लेंगे हम, यहाँ से यहाँ लेंगे, फिर यहाँ से we'll take it from this point and then this to path I and ये I double ऐसे लेंगे first this it is I is equal to यहाँ से ये है ना dx डिस्टेंस, dx, तो y is 1, यहाँ से यहाँ तक है ना 1, तो v डॉट dl क्या आएगा? शाबाश. b क्या है हमारे पास? b है this. So since it's only along this axis, तो ये y square है ना, यानी along x axis. तो ये x axis को है टुडे v is equal to y square along dx. ठीक है. बट y का वैल्यू क्या है हमारे पास? y का वैल्यू क्या है? 1 square is equal to 1, तो it will be dx. So हमारे पास अब v डॉट इंटीग्रल ऑफ v डॉट dl किसके बराबर आएगा हमारे पास? v डॉट dl हमारे पास आया इंटीग्रल ऑफ dx फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2. फ्रॉम पॉइंट 1 यहाँ से गए, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है. तो इसका क्या वैल्यू होगा हमारे पास? सो इट विल बी x between the point 2 and 1. 2 minus 1, it will be 1. ठीक है. अब ये क्योंकि वर्टिकल स्केच है dx is equal to dz is equal to 0. सो अब हम दूसरा वाला लेंगे वर्टिकल स्केच. ये तो हमने हॉरिजॉन्टल स्केच किया यहाँ से यहाँ तक. अब वर्टिकली फ्रॉम दिस सेकंड पॉइंट यहाँ से कैलकुलेट करेंगे. तो vi is equal to, तो क्या आएगा वर्टिकल स्केच? यहाँ से यहाँ से
ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर? हाँ, x का वैल्यू 2 आएगा। कैसे आएगा 2? हाँ, यहाँ से लेते हैं ना, यहाँ से लेते हैं ना, स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, लेट्स सपोज x इक्वल टू 2। तो v डॉट dl किसके बराबर आएगा? v डॉट dl आएगा बराबर, तो we have to take this value, that is along quantity y, तो हमको ये वाला लेना है 2x into y plus 1, 2 into x, but x का वैल्यू क्या है? 2 into y plus 1, ठीक है, और अपना dy, so this is the value, it will be 4 times y plus 1 dy, ठीक है, so v dot dy। तो अब इसका इंटीग्रल है v डॉट इंटीग्रल फ्रॉम कहां से कहां तक है? अगेन इट्स फ्रॉम पॉइंट यहां से यहां तक, y का वैल्यू, इट्स नॉट x का वैल्यू, सो इफ इट्स y का मींस इट्स 1 से 2 तक, यानी यहां से यहां तक, सो यू शुड रिमेंबर यहां 1 से 2 तक यहां, सो इट्स 1 into 2 4 times तो क्या आएगा? इसका वैल्यू आएगा, ये आएगा ना, अंदर से इसको करो इंटीग्रेट, इट विल बी y स्क्वायर बाई 2 प्लस y, फिर y स्क्वायर का अपना वैल्यू डालो, 2 पहले माइनस 1 करो, ये थोड़ा सा अपनी जगह करो, द वैल्यू कम्स आउट टू बी 10, इट्स एन एक्सरसाइज। सो हमारा अब पार्ट 1 प्लस पार्ट 2, दिस I प्लस सेकेंड दिस प्लस दिस आया हमारा कितना? ये आया हमारे पास, पहला वाला आया 1, दूसरा आया 10, 11, तो वी हैव इनडायरेक्टली कैलकुलेटेड इट, तो ये आएगा 11, इट कैम आउट टू बी 11, ठीक है, बट नाउ वी कैन कैलकुलेट इट डायरेक्टली फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक, दिस एक्सरसाइज में, सो वी हैव डन इट इनडायरेक्टली यहाँ से यहाँ, सो इट विल बी 11। अब हम दूसरा वाला करेंगे, वी जस्ट चेक आउट वेदर वी कैलकुलेट जो लाइन इंटीग्रल डायरेक्टली फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब देखो, तो ये है कि चलो हमने ये मैंने सेकंड वाला मिटा दिया, ठीक है, 10 वाला मिटा दिया, ठीक है, सो अब वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। अब देखो यहाँ पर क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना, ऐसे ऐसे है ना ये वाला, सो इतना जितना x से दूर है इतना y से भी दूर है ना, सो x is equal to y, x is equal to y, so it will be equal to x is equal to y or dx is equal to dy and dz is equal to 0, क्योंकि z डायरेक्शन में कोई इसका ये नहीं है प्रोजेक्शन, सो di जो होगा, जो लाइन इंटीग्रल हमारे पास आएगा, so that's dxx plus dy y, जो लाइन एलिमेंट, ठीक है। अब v डॉट dl क्या आएगा बराबर? v डॉट dl इज इक्वल टू v डॉट dl आएगा, ये आएगा y स्क्वायर अपना, है ना, बट y इज इक्वल टू x, सो यू कैन राइट इट आल्सो एज x स्क्वायर, पर तो नहीं पड़ेगा ना, सो यू कैन राइट इट एज x स्क्वायर था y स्क्वायर dx, बट सिंस x इक्वल हम क्यों किया, इसको थोड़ा कैलकुलेशन को इजी बनाने के एक ही वेरिएबल आएगा। तो दूसरा वाला क्या है, 2xy प्लस 1, तो उसमें भी 2xy को हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ x, सो इट विल बी x प्लस 1 dx, तो इट विल बी ये 2x स्क्वायर आएगा, ये x स्क्वायर आएगा, ये आएगा 3x स्क्वायर dx, 3x स्क्वायर 2x, तो dx बाहर 3x स्क्वायर 2x dx है। आप इसका इंटीग्रल करेंगे, इंटीग्रल कहां से कहां तक है, पॉइंट फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 1 पॉइंट 2, 1 2, इसको 1 2, तो यू इंटीग्रेट किया आएगा x2/3, 3 3 से कट जाएगा प्लस
एक्स स्क्वायर बाई टू टू के साथ कट जाएगा, डी एक्स को आप बिटवीन द पॉइंट 1 एंड 2 को कंप्लीट तो 8 प्लस हो गया 12 माइनस 1 एंड 1 हो गया 2 10 सो वी हैव कैलकुलेटेड इट। तो लाइन इंटीग्रल यहाँ से आ गया 10, ठीक है, यहाँ से आ गया so we have 11. So we have shown that जो line integral हमने calculate किया on two paths, it did not come out to be same. ठीक है, वही था. But once we calculated for a conservative field, it should there are some exercises in the book, different exercises. So that will give you a proof whether it is a conservative or a. एक बार आपने सीख लिया ना लाइन इंटीग्रल को कैसे कैलकुलेट करना है, बट देन यू कैन दैट लाइन इंटीग्रल कैन बी लाइन इंटीग्रल ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग ए गिवन पॉइंट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है, यू चेक आउट. सो देयर आर लॉट ऑफ बुक्स एक्सरसाइज इन द बुक्स यू कैन ट्राई इन द सेम मैनर. सो दिस इज लाइन इंटीग्रल. अब यू कैन डू द सेम थिंग फॉर सरफेस इंटीग्रल एंड फॉर वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है. एक बार तो समझ आया ना लाइन इंटीग्रल के लिए आसान. अब सरफेस इंटीग्रल में यही है, यहाँ हमारे पास v डॉट dl था, नाउ इट इज v डॉट फ्लक्स. जो मैं कह रहा था ना, कंडक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फ्लक्स किसी एरिया में पास करेगा. अब जो वो एरिया होगा ना, वो इट्स नॉट नेसेसरी परपेंडिकुलर होगा, ऐसे नहीं होगा, तिरछा एट सम स्लांट होगा. दैट्स व्हाई वी हैव ds cos थीटा, है ना. That will give us the orientation उसका क्या है डॉट, तो उस हिसाब से आप फ्लक्स देखिए. So you have to calculate area element इसका निकालना. So अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल बुक है क्यूब हमारे पास, डिफरेंट फेसेस ऑफ द क्यूब है ना, यू कैन डू दिस. मैं एक बार आपको दिखाऊंगा तो यू जस्ट अप्लाई फॉर द डिफरेंट साइड्स ऑफ द क्यूब. ये थर्ड है, ये फिफ्थ है, ये सेकंड. सो यू हैव टू कैलकुलेट द सरफेस इंटीग्रल. अगर मैंने चार्ज को यहाँ पर रखा, कोने पे रख लिया, द फ्लक्स लाइंस ऑफ फोर्सेस विल बी देयर. यू कैन अंडरस्टैंड इन द लैंग्वेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो वी हैव टू सी कि नेट एरिया में कितना ये निकलेगा फ्लक्स, ठीक है. सो एक सरफेस को हम जिस तरह हमने एक लाइन को कैलकुलेट किया, सो वी हैव टू कैलकुलेट v डॉट a फॉर सरफेस 1, फिर सरफेस 2, फिर सरफेस 3, ऑल द 5 केसेस ऑफ द क्यूब. चलो एक साइड इसने नहीं लिया, साइड हियर, साइड, और यू कैन कैलकुलेट दैट वन आल्सो, दैट विल कम आउट टू बी. सो तो सरफेस v डॉट a फॉर सरफेस 1 plus surface 2 plus surface 3 and सब का इंटीग्रेट करके that will give us the surface integral, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल फॉर सरफेस 1 यहाँ इसने बुक में दिया है, he has given this ये कह रहा है कैलकुलेट, ये है फंक्शन और 5 साइड्स. 5 साइड्स के लिए निकालो. हम पहले एक साइड के लिए निकालते हैं, फॉर साइड 1 के लिए निकालते हैं. फॉर एग्जांपल एक साइड x इक्वल टू 2, क्योंकि ये कह रहा है एक साइड जो है उसका जो है ना डायमेंशन 2 है. ये क्यूब है, ईच साइड इज ऑफ डायमेंशन 2 सेंटीमीटर 2 मीटर जो है, तो x इक्वल टू 2. अगर x डायरेक्शन में लिया है तो द कंपोनेंट विल बी परपेंडिकुलर टू y एंड z. और अगर फ्लक्स यहाँ से जा रहा है, द सरफेस जो होगी दैट विल बी dA जो एलिमेंट होगी, आप देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. द जो यहाँ है ना एरिया एलिमेंट, दैट विल नॉट बी dx, दैट विल बी dy dz. तो यू हैव टू कैलकुलेट जो फ्लक्स जो एरिया अगर x डायरेक्शन में होगा तो उसका एरिया एलिमेंट है ना दैट्स परपेंडिकुलर टू बोथ. अगर फॉर एग्जांपल y इक्वल टू 2 होगा, एरिया एलिमेंट होगा dx dz. अगर z इक्वल टू 2 होगा तो एरिया एलिमेंट होगा x dx dy.
ये चीज याद रखना। अगर एक के लिए हम कैलकुलेट करेंगे सो वी कैन सी v डॉट dA फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू, तो ये है ना यहाँ पर इंटीग्रल इट विल बी 2x z, ये है ना, सिंस इज अलोंग x एक्सिस, तो ये v का ये हम ये वाला x कंपोनेंट लेंगे 2x z। तो एरिया एलिमेंट क्या लेंगे, एरिया एलिमेंट dy dz, ठीक है। तो x का वैल्यू है हमारा 2, तो इट विल बी 4z dy dz। अब क्योंकि लाइन सरफेस इंटीग्रल है ना 4, ये दो बार आपको इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। dy एक आपका dy goes from 0 to 2, dz goes from, एक बार y आएगा, ये 4 2 minus 0 8 आएगा, ये भी 2 minus 0 8 आएगा, इसका वैल्यू आएगा 60। एक फेस के लिए निकाला आपने, you can do for the second phase, third phase, so calculate the surface. So अब ये जरूरी नहीं वो shape of the, it will be cube, it may be any other shape। आपको फिर देखना कैसे आएगा v dot dA हर shape के लिए। And this thing you can also calculate the volume integral को भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम इंटीग्रल में है सिर्फ v डॉट d tau, so it will be d tau है, that's dx dy, इसमें आपको ट्रिपल इंटीग्रल करना है 0 to x, x कहाँ से, y कहाँ से, z कहाँ से, and you have to see it like this, vxx vyy vz, इसका d tau को फिर आप रिप्लेस कर सकते हो ऐसे dx dy dz, and this is integral। अब इसलिए ट्रिपल इंटीग्रल है ऐसे। पहले आप dx के लिए देखोगे, बॉक्स को बाहर रखोगे, फिर dy को रखोगे बाहर रखोगे, अब इसमें हाँ अगर हाँ क्या होगा अगर हाँ पार्ट वाइज करना है ना, पहले एक को करना है dy dz वेरिएबल को बाहर रखना है उसको, इस तरह dz को रखोगे dx dy बाहर रखोगे, फिर वापस करोगे dx के साथ, फिर जब पहली बार dx करोगे उसमें x के वैल्यू डालोगे, पहले निकलेगा x का कंपोनेंट, फिर जब dy करोगे फिर y में आएगा, फिर बार y के वैल्यू डालोगे, फिर जब dz का आएगा फिर z के वैल्यू होगी, सो यू हैव टू ईच कोऑर्डिनेट के वैल्यू अकॉर्डिंगली dx, एंड देयर आर लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस व्हिच यू कैन अटेम्प्ट। अब इट्स नॉट दैट इजी, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब कैसे कोई भी इंटीग्रल कैलकुलेट करने में, बिकॉज एट द एंड हमारा मकसद है इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना निकलेगा ऑन ए क्लोज्ड और एन ओपन सरफेस, एंड यू हैव टू बी वेरी कॉशियस ऑफ चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अरे मतलब फ्लक्स यहाँ से है, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एक्स एंड वाई, अगर इफ इट्स इन अलोंग एक्स एक्सिस सो द प्लेन इज अलोंग dy dz, if it's along y you have to dx and dz, if it's along z it is dx dy, ठीक है, while evaluating the integral, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, will not get the exact answer। मगर इसके अगली वाली प्रॉब्लम में if you do some तो आपको सेटिस्फेक्शन आएगी बहुत जो एग्जैक्टली कैलकुलेट